पैसे आ रहे हैं बट आई एम जस्ट स्पेंडिंग फॉर द अदर्स। देन आई रियलाइज कि मैं काम 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 कर रही हूँ एंड आई एम नॉट सेविंग, मतलब कहीं सेव ही नहीं हो पा रहा है इन फ्यूचर मेरे। कभी एक साथ पैसा आता है, कभी 1 मंथ नहीं आएगा। Hello everyone, myself Anjali Tari, your goal planner. Today I would like to take an interview of one of the charisma in real life. As you all know, I always believe that women have the greatest charisma in each and everything what they do. May it be their education, their career, their family, everywhere they are on the top. Okay, but generally we preach that women should do this thing for financial planning, how she should take care of investment, how she should manage her money. So this is all about preaching. But today let me take you to a real journey of a woman who is successful in her career and who has been taking her financial decisions. So today I introduce you to a successful businesswoman who is the real charisma in her life. So she is Miss Siddhi Vishwekar. Hello. She's a hairstylist and she has done her MBA in HR. She has worked with Taj Ivanta, managing the HR team. But she realized that her passion was something creative. So she entered this creative industry of beauty industry, what I would say. So she has been working with many celebrities from Bollywood industry since past 7 years. She has a very huge clientele. So let's connect with her and let's begin. Hi Siddhi. Hello. Hello. So just tell me when you started working and how you had been managing your money. So right in the beginning I have a zero idea ki how will I manage the money, what should I do, because as a freelancer there is no stability. So I feel कि it has to be stability. Then Ayushri ने बोला कि you do, so I called you कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे ये प्लान्स क्या है, मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या है, हाउ आई विल सेव। मेरे पास पैसे आ रहे हैं बट आई एम जस्ट स्पेंडिंग फॉर द अदर्स। देन आई रियलाइज नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई स्टार्ट SIP की, देन आई थिंक कि नहीं अभी लॉन्ग टर्म प्लान्स करने चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लान्स करने चाहिए। देन आई जस्ट गोइंग थ्रू अबाउट दैट। ओके, ग्रेट। सो सिद्धि, टेल मी कि आपने कब से काम करना स्टार्ट किया और आपने तभी हाउ यू आर मैनेजिंग योर मनी? Yeah, so basically after my 10th standard से I start earning because I do a small events, छोटे events करके I start earning. Then I realize कि मैं काम कर रही हूँ and I'm not saving, मतलब कहीं सेव ही नहीं हो पा रहा है in future मेरे। तो one of my friend freelancer Ayushri Tari, she suggest your name and then I started my saving का journey. So आपने आपकी जर्नी एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया, ठीक है? तो एज अ फ्रीलांसर बहुत से चैलेंजेस रहते हैं, फिनेंशियली बोलो, इमोशनली बोलो, ओके? सो वो आपने कैसे मैनेज किया? सो बेसिकली जब पैसे आते हैं तो हम पहले जो बेसिक नीड्स पेंडिंग है वो फुलफिल करते हैं एंड फिर वो सेविंग नहीं हो पाता था। तो देन आई स्टार्टेड कि फर्स्ट सेव करो, फर्स्ट आप SIP करो या म्यूचुअल फंड में डालो। देन आई स्टार्टेड स्पेंडिंग माई अदर थिंग, बिकॉज क्या होता है ना, जब हमें एक्चुअल ज़रूरत होती है तब पैसे नहीं होते। बिकॉज एज अ फ्रीलांसर कभी एक साथ पैसा आता है, कभी 1 मंथ नहीं आएगा। तो फॉर दैट मेंटेनेंस, तो वो स्टेबिलिटी आनी बहुत ज़रूरी होती है फॉर दैट। ओके, ग्रेट। So as you said, कि being a freelancer, there was a income irregularity. Yeah. Okay. So when we both met, so I could understand कि you had a concern कि मेरे को जब जरूरत है तभी पैसा चाहिए. Yes. Right. So was that purpose solved of yours when you met me? Yeah, it's really I want to share a one incident with you कि एक बार पता है कि मेरा चंक में पैसे आए थे, लाइक आई इन्वेस्ट लाइक 80,000 50,000 एंड देन सडनली नेक्स्ट मंथ मेरा शूट नहीं था एंड कहीं से पैसे आने रुके थे। सो दैट टाइम आई फील वेरी रिलैक्स कि आई कॉल यू कि नहीं, मुझे जो शॉर्ट टर्म का हमने इन्वेस्ट किया आई वांट टू रिडीम दैट बिकॉज आई रियली नीड टू फुलफिल माई बेसिक नेसेसरीज। बिकॉज क्या होता है ना, एज अ फ्रीलांसर आपके पास आता है तो 4 जगह से आता है, नहीं आता है बिकॉज एक सीजन टाइम होता है। बारिश के टाइम पे कोई काम नहीं करता, मोस्टली शूट नॉट वर्क्स, मतलब ब्राइडल का सीजन नहीं होता बेसिकली। फॉर दैट टाइम वी नीड लाइक अ लॉट। सो
then I realized कि I'm very glad to meet you and I'm very thankful for God कि हाँ I'm doing this thing and it's really helps me a lot. Okay. And thank you so much for that. Okay. So if you remember in our first meeting, I had told you, Yeah. right, that see Siddhi, you need to give me a year's time or a 2 Yeah. years time, wherein first of all I will develop a habit of discipline investing. Yes. जनरली कैसे हो जाता है कि चलो हम लोग सेविंग्स करते हैं, बैंक अकाउंट्स में करते हैं, जब आता है कोई भी एक्सपेंस तो खर्चा कर देते हैं. Yes. बट एज आई ऑलवेज से, बीइंग इट अ फ्रीलांसर और Yeah. योर जेन ज़ी जनरेशन, राइट, सो खर्चे तो बहुत होते हैं, Yes. राइट. Yeah. इनकम भले अलग अलग सोर्सेस से आता है, Yeah. लेकिन इनकम से ज्यादा बैंक अकाउंट से आपके एक्सपेंसेस निकल जाते हैं. Yeah, because क्या होता है ना, if I have like some amount in XYZ in my account, then I started thinking कि अरे ये भी करना चाहिए, अरे नहीं ज़रूरत है, still नहीं वो भी करना चाहिए, नहीं वो भी है. Then it's like कि जब zero like जब एकदम थोड़े से पैसे बचते हैं, then you realize कि अरे shit, next month का घंटा तो दिया ही नहीं, यही नहीं दिया. Then you start realize. Then as a freelancer, that's most difficult part and most scary part in our industry because लोगों को लगता है इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, but how to manage money, that's the most beautiful part in the like I feel कि हाँ आपको spend भी करना है, enjoy भी करना है, आपको invest भी करना है. जस्ट एज आई सेड कि Yeah. मुझे 2 साल क्यों लगे, सिंस नाउ यू आर माय क्लाइंट सिंस लास्ट 4 years आई वुड से. Yes. ओके, सो 2 साल जो फर्स्ट 2 years है, हम कभी Hmm. कभी बोलते हैं ना कि हम कोई भी चीज, नई चीज भी सीखने की कोशिश करते Yes. हैं, तो उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए फर्स्ट यू शुड, अगर आप जिम जा रहे हो, राइट, तो पहले तो घर से निकलना पड़ता है, उसके Yes. बाद वो पहले दिन आप 10 सेट मारते हो, फिर 50 मारते हो, फिर 100 मारते हो, Yes. राइट, बट उसके लिए आपको ट्रेनर लगता है. Definitely. ठीक है, अगर कोई ट्रेनर नहीं हो, अगर कोई कोच नहीं हो, तो इट बिकम Yeah. डिफिकल्ट टू कीप यू मोटिवेटेड Yes. एंड ऑलवेज टू सी कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आर यू रियली डूइंग इट. सो जस्ट एज आई एम रियली थैंकफुल कि आपने काफ़ी, मतलब यू जस्ट ट्रस्टेड मी कि ओके फाइन, कि ठीक है व्हाट अंजलि सेइंग कि Yeah. हाउ इट शुड बी. So starting में मुझे इतना ट्रस्ट नहीं था because this is very new for me for this experience. But one of my friend Ayushri told about you. Then I'm blindly trusting her. So I was like, no, it's very important. And for my father is also like he's a businessman. तो उनका long term कुछ नहीं था, pension types. तो एक मुझे भी रहता था कि when I become old, so मेरे पास भी एक income आना चाहिए. For that purpose also मतलब मैंने सोचा कि हाँ करना चाहिए. Okay, great. Yeah. So just I always talk about emergency fund, Yes. right? So why? Because generally कैसा होता है ना कि आजकल का सिनेरियो ऐसा रहता है कि people want to build wealth within 6 months, within 1 year, okay? Yeah. और उनको fast multiplication of income चाहिए, but बहुत बार ऐसे हो जाता है कि उनके हाथ जल जाते हैं due to this particular thing. Yeah. So how has emergency fund, that what I have advised you for investing in liquid fund and all, Yeah. has it helped you? Yeah, it's a lot. It's helping me a lot. Like liquid for long term phones. Like मुझे इतना नहीं समझता. But when you say कि नहीं सिद्धि तुझे ये करना है, तुझे यही करना है, तो I am like कि हाँ I have someone who is guiding me, who is like एक बोलते हैं ना कि भगवान का हाथ है like types. Because it's very important to save your money and manage your money. Because that's I feel a lot. And do you remember one thing? Yeah. When we had started your investment, I had advised you Hmm. कि आपका जो भी इनकम आता है वो बैंक अकाउंट और आपका इन्वेस्टमेंट का बैंक अकाउंट Yes. अलग होना चाहिए. Yes. तो उससे आपको क्या फायदा होगा? हाँ मतलब क्या होता है ना कि मेरे अकाउंट में दिखता है. आई टोल्ड यू कि मैं जो अपना SIP का है मैं वो ऐप कभी डाउनलोड नहीं करूँगी. बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट सीइंग कि मेरे पास इतने पैसे हैं, देन आई कैलकुलेटिंग कि नहीं अरे मुझे ये भी बैग लेना है, मुझे ये टूल लेना है हेयर का, ये न्यू प्रोडक्ट आया है, सो आई स्टार्ट बाइंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप सेपरेट अकाउंट्स टू सी कि हाँ नहीं दिस इज इतना सेविंग का अमाउंट है, इतना ही मैं स्पेंड कर सकती हूँ, एंड दैट इज माई अदर थिंग आई कैन स्पेंड दैट. Yeah. So that's very important and that's really helps me a lot. Yeah.
बिकॉज वाई यू नो जनरली हैविंग 2 बैंक अकाउंट्स इट रियली हेल्प्स कि आपका जब भी आपका इनकम आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट का जो बैंक अकाउंट है अगर उसमें फंड्स ट्रांसफर कर देते हो उसके बाद आप खर्चा करो. So that is what I generally tell my Gen Zs also कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपको करना है you keep a separate bank account for that. So that मतलब आपको वो ये नहीं होगा नहीं जाने दो SIP डेबिट होगी नहीं होगी एंड ऑल दैट. अच्छा मैंने पहले ही ट्रांसफर कर दिया ताकि मेरी SIP राइट डेट पे हिट होगी और वो डेबिट होगी और इन्वेस्ट हो जाएगी. डू यू बिलीव कि वुमेन्स ओके दे शुड स्टार्ट सेविंग इन्वेस्टिंग राइट फ्रॉम द यंग एज or they should leave that financial decision just जो पिछले 30, 40, 50 सालों से या मे बी बिफोर दैट देयर इज अ ट्रेंड कि जनरली जो फाइनेंशियल प्लानिंग के डिसीजंस रहते हैं those are taken by men in the family, by our fathers then husbands, right? So But do you believe that? I feel it's not, because women is also that much capable now कि आपको कैसे पैसे मैनेज करने हैं, क्या करने हैं, वो आपको आना चाहिए. बिकॉज मेंस करते हैं, नो डाउट दे हैंडल इट्स वेरी वेल, वेरी नाइसली, बट फीमेल्स भी करना चाहिए ना. मतलब आई फील मोर इंडिपेंडेंट कि हाँ ऐसे लगता है कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग. बिकॉज आपको मनी का नॉलेज होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू मैनेज योर मनी. तो इट शुड बी इक्वालिटी. आई फील कि हाँ अगर आपको पता है तो मुझे भी पता होना चाहिए. एंड इफ़ माई डैड डू, इफ़ माई पार्टनर्स डू, तो इक्वली आई एम ऑल्सो स्पेंडिंग. बिकॉज मुझे भी कैलकुलेशन आता है अभी कि नहीं, इफ़ आई अर्न लाइक मैंने ये महीने में 80,000 कमाया है तो आई विल स्पेंड 30,000 ऑन माई सेल्फ. मैं इन्वेस्ट करूँगी लाइक 1/3 उसका इन्वेस्ट करूँगी. सो दैट्स वो मुझे भी आना चाहिए. एंड माई डैड एंड यू ऑल्सो explaining me a lot. Okay. Second thing is कभी-कभी when I meet Gen Zs they say कि okay fine मुझे the latest iPhone लेना है या मुझे latest जो अभी latest bullet आई है मार्केट. That's so little attraction. ऐसे मुझे भी होता था, मतलब है अभी भी. But I feel कि attraction is a good thing कि उसके लिए आप थोड़ा-थोड़ा सेव करें and then you take आपके एम्बिशन, मतलब आपके ड्रीम्स भी फुलफिल हो रहे हैं एंड यू ऑल्सो गेटिंग कि हाउ टू मैनेज योर मनी. बट आई फील कि एज अ बिंग इंडस्ट्री आपको थोड़ा शोषा करना भी ज़रूरी है कि एज अ मुझे फ़ोटोज़ लेने हैं एक्टर के साथ या मुझे कुछ एक्टिविटीज़ करने हैं. सो फॉर दैट यू हैज़ टू कीप योर स्टैंडर्ड लिटिल ऑन टॉप, बट उसके साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है. बट आप जो बोल रहे हो कि हमें एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है when you're going for a shooting, whatever your equipments and everything, do you believe that it should be bought on EMIs or you No. should first save and then you should buy? I always save and then buy. I never take an EMI. Touch wood कि मेरे पास अभी भी एक भी EMI नहीं है. Whenever I just want something, I start saving. When I done 100% fully, then I take. Because then as a freelancer it's too burden on me कि मेरा पैसा कब आएगा, मैं कब दूंगी. It's like it's too much burden on me and I don't like to take like that kind of burden at all. Okay. Just as I always say, long term investing मतलब आपके जो लाइफ के गोल्स हैं राइट जो आने ही वाले हैं 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, आफ्टर 30 years प्रोबेबली अपना रिटायरमेंट है एंड ऑल दैट. तो कुछ ऐसा फंड भी होना चाहिए कि जिसको आप सिर्फ इन्वेस्ट करते रहे, ओके, उसको बिना देखे, सो दैट पैसिव वे में आपका फंड बन रहा है. डेफिनेटली माय फर्स्ट थिंग इज दैट ओनली कि मुझे मेरे पेंशन जैसा कुछ आना चाहिए इन फ्यूचर. बिकॉज एज अ फ्रीलांसर आई एम सेइंग अगेन कि देर इज नो लॉन्ग टर्म, बिकॉज आफ्टर माई सर्टन एज व्हेन आई स्टॉप अर्निंग अ लिटिल लेस, देन मेरे पास कुछ होना ज़रूरी है. दैट्स द मोर मोटो. ओके. सो वन मोर थिंग आई हैव ऑब्जर्व कि जनरली लेडीज़ का कैसे रहता है कि चलो एज यू सेड कि आफ्टर योर 10th standard you started working. Okay, now you are there in your industry for past 7 years, but एक ऐसे टाइम भी आता है then we get married, right? We take a career break. And as I generally say कि 20 से लेके 35 की जो एज रहती है for a female it is very important.
या सो मतलब आप आपका करियर भी बिल्टअप करते हो, तो आपको लगता है ना कि हमें हमारे करियर के साथ हमें मनी मैनेज करना आना चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. डू यू थिंक दैट वन एंटायर डिकेड इज सो यूजफुल? It's so useful. I can't tell you. Like the starting, I never understood, but later on, when I'm in this age, it's like कि thankful. I'm very blessed कि I started my saving little early. So हाँ होते हैं शादी के लिए I need to my money, like if I launch my product या if I want my salon. So for that certain thing I need to a separate savings. It's really matters. So you believe that what I always say, goal-based planning is the starting most I important. never understood, but now it's like I feel like little thankful I'm doing this all times. Okay, great. So Siddhi, tell me, do you think Gen Zs, okay, when they are starting with their savings, with their investment planning, should they do it on their own or they should do it with an advisor? Definitely with the advisor, because what happened ना कि आप जब तक इन्वेस्ट करने जाते हो ना तब तक आप कहीं बिजी हो जाते हो, देन आपको कुछ खर्चे दिख जाते हैं कि मुझे ये लेना है वो लेना है, तो आप जब तक इन्वेस्ट करो तब तक वो पैसा खर्च हुआ होता है एंड हमें रियलाइज भी नहीं होता वाइल वर्किंग, वाइल डूइंग दिस दैट. सो वो फ्लो में यू जस्ट गॉट एग्जाम्पल. अभी जस्ट मेरे पास 60,000 थे, कहीं से आए थे एक इवेंट के. सो मैं जब तक किसी गोल्ड लेने जाऊंगी, बिकॉज आई टेक SIPs, हमारा जो प्लान है, प्लस आई टेक एवरी मंथ 2 ग्राम्स का गोल्ड. सो जब तक मैं लेने जाऊँ इट्स जस्ट स्पेंड, मतलब मुझे ये भी लेना है वो भी लेना है सब लेना है. सो डेफिनेटली यू हैज टू बी विद द एडवाइजर, बिकॉज वो इट्स देन यू रियलाइज आफ्टर योर 30s इट्स लाइक सच अ हॉरिबल कि अरे यार मुझे शादी के लिए पैसे नहीं है, अरे मुझे घर लेना है, इसके लिए नहीं है. फॉर दैट यू नीड लाइक हाईली. Okay. Do you think that financial independence is a necessity of each and every woman, not a choice? It's necessity a lot, like not a woman's, for everyone. The independence, this thing is very important for everyone. Yeah. Okay. Because see, many a times what happens, we talk a lot about financial freedom, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लेकिन financial freedom का अगर आप सही उसका अगर सही मीनिंग जान पाओ कि okay fine, if I want to buy a thing, I want to go for a vacation, I want to buy a next gadget, if I want to give someone, I should have fun. Right? And second thing है कि जैसे आज ही नहीं, आज आप कमा रहे हो तो you can spend, but later when you are not earning, you know the most important part what we all forget is कि हम लोग 40 साल काम करते हैं, ठीक है, from 20 and then we don't have 60. anything. If you see in your hands there is nothing, because what ना no one teach कि how to save, how plan, because वो कहीं सिलेबस में भी नहीं आता, ना आपके पेरेंट्स बताते. नो वन टेल यू दिस थिंग कि आपकी सैलरी आ रही है, आपके बेसिक नेसेसरी है, आपके फंड्स है, आप स्पेंड कर देते हो. एंड द हाउ टू मैनेज द मनी ये कोई नहीं सिखाता आपको. एंड फॉर दैट इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड आप जब मैं आपसे मिली तब आपने बताया कि नहीं सिद्धि आपका ये लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, वो लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, तब मुझे नहीं पता था. बट ये अवेयरनेस ही नहीं है. मतलब वो लोग ढूंढते हैं कि मुझे कहीं मिले, बट नेवर, लाइक किसी को नहीं मिलता. एंड आई एम वेरी ग्लैड कि यू स्टार्ट दिस प्रोग्राम एंड सब तक ये पहुंचेगा कि हाउ टू इन्वेस्ट. So Siddhi, in our overall discussion today, would you like to give that one specific message to each woman, each Gen Z, about how and why they should manage their money, they should start investing with a proper advisor? I would like to hear that. So I feel कि as much as early just start investing, कि आपके पास पैसे आ रहे तो राइट वे में आपको इन्वेस्ट करके यू हैज़ टू लाइक राइट वे में आपका मनी प्लान करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और everyone, not just the Gen Z or anyone, just everyone needs to plan their money and start investing and for the long term with the right advisor. Thank you, Siddhi, for such a wonderful discussion and giving your insights on investment planning. So thank you all. Stay tuned to watch the next
Charisma episode. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.